Hi Karan, hope you are doing fine. I'm waiting for Nasiha ji to join me. Uh, Nasiha Samin ji is our guest today. She has joined. One second. Nasiha ji, I have sent you the request. You can accept. Hi, Manoj. Hi, am I audible to you? Yeah, loud and clear. Okay, great. Signal at your end is okay, right? Good. I'm facing a little bit of latency, but otherwise I can hear you. Okay, because we need to hear you today. Can you hear me? I think I'm audible. Is the voice clear? But your voice is lagging a bit. Yeah, I think there is some latency. Okay, and I think it will get better in a few minutes as we move on. So we can start. So Nasiha ji, we'll have it in Hindi and English both. If it's okay with you. Yep, it is. Okay, so friends, those who have joined us and those who will be watching this recorded video later on, आज हमारे गेस्ट जो है नसीहा समीन जी हैं। और पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। रूहे मोहब्बत हैं हम लोग। वी आर प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव टैलेंट इन पोइट्री, शायरी। आप चाहे जिस फील्ड में क्रिएटिव हो, वी आर द प्लेटफॉर्म एंड वी लव रॉ टैलेंट। एंड हमारा आजकल जो हमने शुरुआत की है पोइट्री टॉक्स की, वेयर वी इनवाइट वेरियस पोएट्स एंड राइटर्स और उनकी राइटिंग डिस्कस करते हैं, उनकी लाइफ डिस्कस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम राइटिंग उनके लिए क्या है, व्हाट इज पोएट्री टू देम। तो आज हमारे साथ हैं नसीहा समीन जी। शी इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। तो एनालिटिक्स इनके कूट कूट के भरा हुआ है। शी नोज हाउ टू एनालाइज थिंग्स और कॉर्पोरेट की मदद करती हैं। Now we will discuss a lot of things because she has also won Best Debut Writer and Best Woman Writer Award और Amazon Best Seller भी है इनकी पोइट्री की बुक। तो हम उस बुक में से कुछ चीजें सुनना भी चाहेंगे आज। होप आप लेके आई हैं हमारे लिए। तो नसीहा जी, ये तो मेरे तरफ से इंट्रोडक्शन है, बट आई वुड लाइक कि हमारे ऑडियंसेस को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। ये ना सबसे डिफिकल्ट काम होता है मेरे लिए, क्योंकि सच पूछो तो अभी तक इतना लगा नहीं है कि कुछ किया है, कुछ हासिल किया है लाइफ में। जब किसी के लाइफ, if I'm able to motivate somebody to change their life for better, if I am that candle to give a person a hope in the darkest day, I think that would be something, and I think I have a long road ahead of me. Yes, लिखना मेरे लिए became a therapy for some time. I mean, बचपन से लिखने का शौक था बहुत। और मम्मी जैसे बोलती है कि आई वॉज सो मैड अबाउट स्टोरीज कि मैं छोटी जब थी, इवन नॉट इवन नर्सरी, आई यूज्ड टू होल्ड पीपल, नहीं मेरी कहानी सुन के जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। सो दैट वाज काइंड ऑफ क्रेजीनेस। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ के शायर, उसने मेरी शायरी सुन ली, अपनी मुझे सुनाने नहीं दिया। सो दैट वाज द काइंड ऑफ, फिर जैसे हम आगे स्कूल पे जाते गए, then there is a lot of, I come from a town called Cuttack in Odisha. Okay.
and it's a town which is surrounded by two rivers, Mahanadi and Karchuri. And every Uh-huh. year, come rain, Cuttack is at the scare of floods because Cuttack का जो Okay. level है, it's below हाँ. the water level of these two rivers, and these two rivers Okay, surround okay. it. So I Uh-huh. come from this amazing place, and one of the most interesting part about this place is there is a scare of floods going to happen. कभी भी बांध टूट सकता है, लाइफ खत्म है, जी. लेकिन हाँ. फिर भी वहां पे मेला लगा है. वाह. So you would be surprised that people would go there, stand and stare at the rivers, and people will have a business blooming there. So I come from a city which every year faces destruction, and from there a new life starts. Yes. People are like they enjoy even the natural calamities. From there, I went to Gurgaon. It was a complete Okay. different world, and Yes. and I landed up in corporates and analytics being my forte. I went into that stream. So it was while numbers gave me peace in the day, got bread to my table. So Yes. later at night, when you are very tired with number crunching whole day, thinking that today the trend shows this. So 3 हाँ. months down the line क्या होगा? आपको उसके लिए हाँ. प्रिपेयर करना पड़ेगा. So Yes. कहीं वो फिर आपको वो स्टोरी की जैसे कनेक्ट होने लगता है. तब तक हिम्मत नहीं हुई थी किसी को बोलने की कि मैं लिखती हूँ. And all Okay. the stories that I had written, I had kept locked in a box because at times you don't even realize that it's good, हाँ. and there are different people saying, "Hey, stop it! You can't write. It's stupid." Yes. Yeah. So there were a lot of naysayers in my life in the initial years when I was growing up, and some were very close in the family. So that never gave me a confidence to come out and say that, hey, I also want to do certain things. But as life went on, moving through different phases of life in corporates, adjusting, seeing the blatant truth as it was a kind Yes. of difference. It was difficult because I was away from my family, away from everybody, and I went through a dark phase of my life. And that was the time I went back to writing. Writing Okay. gave me a hope to live on. Yes. It was more a therapy for me because there were a lot of things I could not say to people. Neither people could Yes. connect to me or understand. So after that, I realized that yes, this is the way for me. I should write, and I went back to Yes. writing. And then, after 14 years in Gurgaon, I landed up in Hyderabad. I don't know how many years I'll be here because, as they say, I think I am a nomad. I can't stick to one place. I have to keep on moving. There is some place I don't know where I will just reach and say, yeah, this is it. But I think Okay. that's time. Yeah. So, guys, everyone who has joined us live, I'm welcoming you guys and thankful that you could spare some time and join us into this special talk with Naseha ji. And those people also जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, आपको भी पहले से ही एडवांस में थैंक यू सो मच. और नसेहा जी ने जैसे बताया, many of us have this story जो बचपन में लिखना पसंद था. Everyone wanted to write in childhood, but हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर राइटिंग एज ए करियर अभी तक जो है लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है. एंड पीपल डू नॉट थिंक इट एज ए करियर कि उससे बच्चा अपना पेट पाल सकता है या आगे जाके परिवार चला सकता है. इट हैज स्टिल बीन समथिंग दैट हैज बीन लुक्ड ऑन कि
ये स्पेयर टाइम में करो, बट यू कैन नॉट डू इट फुल टाइम, राइट? और मगर आई थिंक यहीं पे हम एज ए रूहे मोहब्बत हम इस चीज को थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो पोएट्री एंथोलॉजी था जहाँ पे आप भी हैं हमारे साथ, तो उसके अंदर हमारे पास एक बच्चे भी हैं, 11 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसकी एंट्री है। उसकी मम्मी से मेरी बात हुई थी एंड शी टोल्ड मी कि नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो फैमिली बोथ द पेरेंट्स आर सपोर्टिंग द गर्ल in writing, and at the same time they want her to be published at a young age, which is a very good change that we can bring about। अगर बच्चे छोटे उम्र में एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं, but they are writing, अपने आप को express कर रहे हैं, बहुत से mental और emotional stress उनके दूर होंगे। एंड आज नसेहा जी को हमारे साथ लेके आने का एक और कारण ये था to talk about mental health also। तो नसेहा जी ने जैसे बताया, इट इज अ थेरेपी, राइटिंग इज अ थेरेपी। तो किस तरीके से आपने अपने उस डार्क साइड से आप निकल के बाहर आई और यू स्टार्टेड राइटिंग अगेन। तो आपके वो जो ट्रेशर बॉक्स में आपने बहुत चीज छिपा के रखा था, क्या उसे पब्लिश किया या जो चीज दोबारा लिखना शुरू किया उसको पब्लिश किया? व्हाट वाज योर फर्स्ट पब्लिकेशन? सो मैंने दोनों किया। ये Okay. है रुबाइशा। हाँ, ये बुक ये इसकी स्टोरी मैं स्टैंडर्ड 7 पे लिखी थी, ओके, and I published it as it is without even हाँ. editing it, because somewhere हाँ. I wanted to see, my parents were very supportive, but हाँ, हाँ. apart from those two, the circle of relatives, Yes. those were very Yes. difficult, and if people keep on saying, yeah, it's no good, so I had to give it was a kind of saying something to me कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, so I published it like that, रुबाइशा। Okay. But उसके बाद what I kept on writing is Ruby Drops। Okay. Yeah, and this Yeah. During this pandemic, this hit the bestsellers, because somewhere and it would connect to people who were going through this time. So I have few from this book. Yes. So हमारे क्योंकि this is poetry talk, तो why waste time and not hear the poetry? Ruby Drop से एक drop मिल जाए हमें भी सुनने को। पक्का। So let me just pick. This is a little inspired by Dante's Paradise Lost and Paradise Regained. Somewhere, don't get me, I'm not Satanist, but somewhere I feel that the jealousy that was in Satan's heart was because he loved God too much. जितना प्यार उसको होना चाहिए ना गॉड से, उससे ज्यादा था। So this is a different take on that whole biblical piece. So it's called I Opt for Curse. Okay. So, and the person speaking is the fallen angel. Okay. Okay, shall I? Yes, 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 of course. I opt for the curse. Here I stand to be judged. Not a word would I speak in my defense. My prosecutor should be my witness, my jury, and my judge be him who accused me. If my love is not enough, I opt for the curse of hell. But will love you in imperfect way I know, the way you created me. For every rule that I broke, I followed my heart, the same heart where you whispered sometime. If that heart is so dark, filled with evil, how can you live there? I sure did feel you. Is submission all you want? Is obedience greater than love? My heart does not agree to it. Had it been so, resonating hymns of angels praying carved in obedience would have touched your heart, satisfied your soul. Yet you created, yet you looked for more, carved me from clay, fire, and water.
sparkling, tasteless water became sweeter but muddy. The fire that burnt bright, now glows with different hues. You look and smile at imperfection that you created. Uh-huh. Valued it over the perfection being of submission and beauty. You created me with imperfection. My imperfections are me. My submission is flawed. Obedience has a mind of its own. The only perfect imperfection I have is my heart that beats for you. Each moment I breathe, I talk to you. I don't know what prayer is. Give me wings, I soar to sky, taste the cloud, raindrop and sun. I fall at times and rise once again to feel the sky you have created. Why do I need to live in cage of rules that I do not understand, nor my heart does? In cage, I would be safe from the eagles and hawk, but would I taste the firmament? Maybe my wings would be burnt in sun, broken to pieces in tornado. Still, satisfied that I felt your love, touched your creation, felt you in all of them. Chain me no more in the rule of obedience. Defiant I'm not, but I follow the whispers of my heart, a place where you live. As imperfect as I am, my love is all that I have, which I would keep offering to you. That is my obedience. If my love is not enough, I Wonderful. opt for the curse of hell, but will love Wonderful. in the flawed way I know, the way you created me. Sand all chains, Wonderful. sand all rules, sand all distance and formality. My love is wild, free feeling. You in me, feeling you in eternity I see. Wow. Wonderful. Wonderful. बहुत अच्छा. It has a deep meaning and it is for everyone to understand and ponder on. The words are so filled with depth in them. So I hope everyone enjoyed it and people, our audiences, those who will be watching it and listening it later on, I think they will also like it because it has deep meaning. Everyone has to think on. So rules and regulations and obedience is what everyone is looking for, right? But love is from the heart, not from the mind. Right. Yeah. So, okay. So, because we are also talking about mental health today. So, Nasiha, what is writing for you? And you said in the beginning it is therapy for you. How it has helped, and how it is helping you, and how you look to take this forward to help others who have some type of mental health problems. What advice you have for them? How to use this writing as a therapy for themselves? So, first thing, writing calms. Yes. Because why do we get agitated? We there are things that's in our heart we cannot speak out. Yes. We feel caged. There are few things that we cannot, for some reason or the other, speak to others. But then it needs to come out. Like, you can't Yes. hold the poison for a long time. It needs to be thrown out. So when Yes. you write down all the uh, all the pain, the words give the pain a direction. It channelizes it. Not Yes. only you feel right, you feel better, you feel calm, as if the words and the words will create a envelope around you. It kind of, Yes. and when you read it, it soothes you. So, Yes. latest sometime people have told me that reading your poem, we could connect. We felt the Yes. same thing, same emotions, and somewhere after one or two, there's a poem on hope. So it kind of and start writing any. What I do, I start writing anything that affects me deeply. I don't Yes. have a set time to write down a poem. It's midnight, Uh-huh. I can't sleep. I get up and I start writing. Okay. I feel very happy, I write. So, Okay. so these emotions, when they come together, uh, Uh-huh.
there is an invisible energy that surrounds us all. That's what I believe in. And हाँ, when that is in form of pain or pleasure, there is a हाँ, direct connection between hearts. yes, That's why a lot of good paintings motivate people to think beyond. yes, So yes, that's how words have immense power. Uh, hmm, if you're feeling low, we listen to a song and we feel better. yes, So that's what I think, and what I do is now I collate this and I write now a piece why it was written, so that hmm, if somebody is on the similar lines, hmm, they can understand. Yes, after this particular phase, the night is yes, darkest just before the dawn, yes, yes, and trust me, depression is something that doesn't leave you ever. hmm, Every day is a battle. Every day yes, you have to remind yourself that you are worth it. You are worth it. hmm, yes, No matter what people say, you don't have to prove hmm, anything to anybody. If you are on this world, hmm, it means that you have some benefit to somebody. You have a role to yes, play in the whole bigger yes, play that is there, arena hmm, that hmm, is hmm, there. So you hmm, don't know how you are making a difference in other people's life. So hmm, don't give up on that. hmm, And I don't. It's a kind of emotional topic for me to talk yes, on, but every day is not easy. Every day yeah, I have to get up and remind myself I matter, hmm, and hmm, I have something. I have to make this day a little better for me and for others. And hmm, maybe my purpose in this life is not yet done. That's why I'm still yes, here trying to make that yes, difference. yes, So, so that's positive reinforcement is something that hmm, helps, and writing hmm, is one of the sure short way of positive reinforcement, and that is how yes, it helps us to move ahead in our life and do all everything that we want to do. hmm, ठीक है। तो दोस्तों, नसिया जी से आपने समझा, ये चीज हम भी बोलते आए हैं, मैं खुद भी इस चीज को मानता हूँ, वर्ड्स हैव पावर टू हील। तो जब हम लिखते हैं अपने इमोशंस को, तो हम अपने को एक थोड़ा सा हील कर लेते हैं। फिर जब हम उसको बोलते हैं या पढ़ते हैं, और या दूसरा कोई सुनता है जो सेम चीज से गो थ्रू कर रहा है, तो दोनों लोग हील करते हैं। तो अपने तक सीमित ना रखें, अपने शब्दों को अपने तक सीमित ना रखें, उसको लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, कुछ लोग होंगे जिन्हें वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है, नॉट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड यू। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया में, 7 बिलियन के 7 बिलियन अगर आपको समझने लगे, तो साहब आप समझ लीजिए आप भगवान हो जाएंगे, बिकॉज देन दे विल बी लिसनिंग टू यू। और हम सब में डिवाइन का पार्ट है, हम लोग पूरे भगवान तो नहीं है। तो लाइफ पूरा हमें उसी पर्पस को लेके चलना है। जैसे नसिया जी ने कहा कि हमारी लाइफ ब्यूटीफुल है और वो मैटर करती है, इसीलिए हम लोग इस अर्थ पे हैं, इस पृथ्वी पे हैं। तो कीप राइटिंग गाइस, टू ऑल द लवली राइटर्स, पोएट्स, आप लिखते रहें, हमारे साथ शेयर करते रहें। हम लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं। एंड लेट्स हैव अ पॉजिटिव लाइफ एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो नसिया जी, तो लेट्स कम जो आपने बताया वो अमेजोन बेस्ट सेलर बन गई ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो व्हाट अबाउट योर अनदर बुक, जिसके वजह से आपको बेस्ट डेब्यू और बेस्ट वुमेन राइटर का अवार्ड मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। Yes, this is Air. Uh, it is Okay. part one of two-part book. It's this one is Air, End of Innocence. It is an saga of passion and politics set in India, 50th century. ओके, 50th सेंचुरी। 50th century. बहुत पास्ट में चली गई। तो उसके लिए अच्छा, आप 50th सेंचुरी में गए, तो इसका मतलब हिस्ट्री, इतिहास को बहुत पढ़ना पड़ा होगा आपको। बहुत तो पढ़ना पड़ा था। तो हमारे उन लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए, यंग राइटर्स के लिए थोड़ा सा टिप देंगी किस तरीके से बैकग्राउंड स्टडी करना है, अगर उन्हें भी कोई भी चीज कंटेम्पररी छोड़ के अगर पास्ट में, हिस्ट्री में लिखनी है, कोई भी अपने प्लॉट सेटअप करना है,
तो किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, टिप दे दीजिए। Sure. So the method that I use is arc. पहले arc बना लिया, लोकेशन सेट किया। सपोज मेरा दो लोकेशन प्राइमरी था, एक हिमालय था और एक जोधपुर था, जयपुर के आसपास। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान। सो उसके बाद आई स्टार्टेड कलेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर उनके हिस्ट्री से। सपोज मेरी स्टोरी वाज इन 50th सेंचुरी, आई स्टार्टेड रीडिंग 100 years बैक फ्रॉम देयर, कि उनका वहाँ पे कैसा रूल चलता था। What is about then I studied a bit on the geography, कि वहाँ का फ्लोरा फौना क्या है, बिकॉज आपकी स्टोरी में इनएडवर्टेंटली आपकी ये चीजें आ जाएगी कि वहाँ का मौसम कैसा था, बंदे खाते क्या थे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वो पहनते क्या थे। आई कांट आस्क देम कि वो लाइक्रा तो पहन नहीं सकते, तो तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो तीन चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, क्लाइमेट क्या था, और नॉर्मल लोगों का खाना पीना रहन सहन किस स्तर का होता है। उसके लिए मैंने 3-4 चीज जो रेफर करती हूँ। पहला तो एनसाइक्लोपीडिया और सारे हिस्ट्री बुक एंड क्लाइमेटिक ज्योग्राफी बुक्स उठाती हूँ, जहां से भी मिलते हैं। ठीक है। और एट टाइम्स रीडर्स डाइजेस्ट के वो भी निकलते हैं कि स्पेशल फ्लोरा एंड फौना ऑफ पर्टिकुलर रीजन। तो कभी रीडर्स डाइजेस्ट के होते हैं, कभी किसी और कंपनी के निकलते हैं। तो वो सारे बुक्स जितने आपके साइंस के बुक्स होते हैं ना, जो साइंस प्रोजेक्ट में काम आते हैं, वो सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो स्टैंडर्ड 8-9 के बुक्स होते हैं। वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो एंड देन यू डू मोर रिसर्च ऑन दैट एंड देन यू गेट ऑन टू इट। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट क्या है वो आप पहले लिखिएगा, टेम्परेचर से लेके आपका सॉइल कंडीशन। तो उसके बाद, बिकॉज आप अगर राजस्थान पे हैं, आप बोल नहीं सकते कि मेरे पैर में कादो लग गया, बारिश हुई कादो लग गया, वो हो ही नहीं सकता था। उस इम्पोर्टेंट चीज है उस टाइम का, एंड यूल गेट अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल्स में, कि उस टाइम के कॉइन्स कैसे थे, कॉइन्स कौन से राजा थे, और उस टाइम का पॉटरी वेयर क्या था। उस हिसाब से देन यू प्लॉट द स्टोरीज। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। पूरा कल्चर आपने, वहाँ का पूरा सिविलाइजेशन कैसे काम कर रहा था, देयर बिजनेस, और उनका कैसे, आपने आर्किटेक्ट भी पढ़ा होगा कि उस समय का कैसा आर्किटेक्ट था, कैसे घर बनते थे, कैसे रजवाड़े थे। तो दोस्तों देख लीजिए, एक राइटर जो है वो अलग अलग रोल उसको पहले पढ़ के या समझना पड़ता है, वो किरदार जी रहा होता है। तो उस टाइम में भी आप जी रहे होंगे, यू माइट बी इमेजिनिंग योरसेल्फ कि भाई उस तरीके का घर है, ये है, देन ओनली यू कैन पुट इट राइट, है ना। तो अच्छा, एक कहावत है कि राइटर से पंगा मत लीजिएगा, वो आपको मार सकता है अपनी कहानी में, राइट। ऐसा कुछ किया है आपने कभी किसी के साथ कि किसी ने आपसे पंगा लिया है और आपने उसको अपनी राइटिंग के अंदर उसकी अच्छी खासी बैंड बजा दी है, उसका कैरेक्टर बनाया, उसका नाम बनाया और उसकी बैंड बजा दी हो, ऐसा कुछ किया है आपने? एक बंदे पे मुझे बहुत खुन्नस था, तो उसका नाम मैंने तोड़ फोड़ के एक विलेन के नाम पे डाल दिया है। अच्छा। तो वही मैं करती हूँ, और उसको मैं मारती नहीं हूँ, फिर उसको थोड़ा सिंपैथी हो जाता है लोगों की, उसको बहुत गंदे नाम को थोड़ा तोड़ मोड़ के विलेंस के ऊपर डाल देती हूँ मैं। तो देखो, फ्रस्ट्रेशन भी किस तरीके से राइटर निकाल सकता है। यू हैव उसको, सामने वाले को हार्म करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पता भी नहीं चला, हमने उसका बैंड बजा दिया, एंड पीपल विल से वाह वाह आफ्टर रीडिंग दैट, कि वाह क्या लिखा है आपने, क्या उसके उस बंदे की तुमने अच्छी खासी हालत खराब कर दी, राइट। क्या बात है। चलिए, हम नाम नहीं पूछेंगे उनका, और हम चाहेंगे कि
हम चाहेंगे कि आप हमें अपने एक और पोएट्री अगर हमें आप सुनाएं। लव जी टू, लव टू। जी ये है, हम सिंस डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड दिस इज जी समथिंग आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक दिन जी दुखी लगे तो दैट्स नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन इज समथिंग यस दैट हॉन्ट्स यू लाइक अ डीमन, एंड एट टाइम्स उस टाइम पे and there people should recognize the signs for their loved ones. So this is a poem that I had written to show what a person in depression feels like. उसके ओके दिमाग में, उसके कानों में किस तरह की आवाजें गूंजती रहती है हमेशा, that keeps on saying you are not good, you are not enough. Even if that person is highly successful, फिर भी वो आवाज बोलती रहती है ना, क्या किया तूने, कुछ नहीं किया ना. So this is about that voice in the head that keeps on talking. So यस it's called vulture voice. ओके So I'll start, huh? Like sharp claws creeping on the glass walls, I do hear a loud screeching sharp voice that rips my ears, tears my skin, that bruising, beating, deafening voice. Blowing hard with acidic salt on my cheek and in my eyes, the wailing voice. With the loud sea roaring in the throat, waiting to melt down, the mourning voice. Stillness of death in the barren sand, under the cloak of silence, a just voice. In futile search of water searching, in the land of mirage, very thirsty voice. In the lowest of the low volume speaks, under the shadow of dagger, a conspiring voice. Watching, waiting with dangerous looks, scheming, plotting like sharp voice. In the ruins of the silence where I stroll, with deafening whispers echo those voices, shadowing me with unheard footsteps, waiting to tear me apart those clawing walls. Under the shrouds of darkness or in deserted plain, nowhere can I hide from those fearsome walls. In drops trickle down blood from my ears, as deeper pierces those boiling red hot walls, burning my existence like wet damp leaves. In slow painful pace, those smoldering walls, holding me tight in their grips, they feast on me, day and night, each moment, those vulture-like ones. Beautiful, beautiful. I hope people could understand what people with depression go through. अच्छा, तो इसके साथ क्योंकि ये तो उसके मन में हो रहा है, राइट, कि what a person going through depression is feeling. तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि how to identify कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारा फ्रेंड है कोई. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है. हाँ हाँ. तो हमें कैसे पता चले कि हमारे इर्द गिर्द जो पर्सन है, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन? क्या साइंस हैं जो हमें दिख जाता है, इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? पर यह है कि हम कुछ चीजें, जैसे ये है कि कई बार क्या है, कुछ लोग किसी को देख के ये बोलते हैं कि भाई अच्छा ये डिप्रेशन में है तो तुरंत मदद करने जाए, बट इट इज आई थिंक हेलो, या हो रहा था. तो हाँ, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी. हाँ, तो व्हाट आर द साइंस कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति है उसको डिप्रेशन हो सकता है? सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, डोंट गो बाय लुक्स. एक डिप्रेशन वाला बंदा सबसे ज्यादा हंसता होगा आपके पार्टी में, वो ओके सबसे ज्यादा जोक क्रैक कर रहा होगा,
But the signs that is a telltale sign is he becomes very uncomfortable, thinking कि ये praise था या making a fun of me. So that shows the person is not very easy. Second, Okay. जब ये बंदा आप the person keeps on doubting himself or herself. जैसे अरे ये अच्छा था, नहीं नहीं, are you sure? That confirmation, that person tries to find a little, yeah. Manoj, did you hear me, or we had a break in नहीं, connection? नहीं, Okay, so I would like to say the person, these are not all, but there are few symptoms or signs. The person seeking approval, and people not being very comfortable with praises. लेकिन जैसे आपने बोला, अरे वाह तूने बहुत अच्छा किया, बंदा सडनली उसको डाउट है कि बंदा सच में मेरी तारीफ कर रहा है या मुझ पे मजाक उड़ा रहा है। उड़ा, बिल्कुल, हाँ। ये सेकंड, बार बार लोगों से कंफर्मेशन करना, यार सच बताओ ना ये अच्छा तो बना है। आपने देखा होगा कोई खाना आप प्यार से खाना खिला रहे हैं और बोले सच में बताओ, आपने 4 बार बोल दिया कि नहीं अच्छा बना है, लेकिन फिर भी बार बार पूछना, दैट अप्रूवल, दैट कंफर्मेशन। अनदर थिंग इज अप्रूवल। ये बंदा सबको खुश करने की कोशिश करे, क्योंकि yeah, are we connected? हाँ, वी आर कनेक्टेड। वेदर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज है। No problem. ठीक है। हाँ, So, and last and most important thing is the person knows that he is in pain. He feels or she feels that he's not enough. So the person tries to please everybody around him or her. People who do not even matter, उनको भी खुश करने की कोशिश में बंदा होगा। So these are few things that should send a person, मतलब अगर आपके आसपास कोई है तो प्लीज बात करिए उससे कि if somebody is like that, and maybe after some time the person will open up and try to tell you कि problem क्या है। तो नसिया जी, हम आपसे एक चीज और इसके बाद और पूछेंगे कि हाउ टू अप्रोच देम एंड हेल्प देम, मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक और पोएट्री हमें सुना दें, बिकॉज दिस इज पोएट्री टॉक। Yeah. Since हम अभी बहुत heavy बारे में बात कर रहे हैं, I'll read out something very light and a bit lovey-dovey. Okay, good. Okay. It's for all, dedicated to everybody who is in love. Okay. So it's the name is Companion,
and Uh-huh. this was originally dedicated to my partner. Okay. After a long day, when my eyes can no longer look at the sun, when I need a shroud to cover me, for I no longer want the light. When in darkness I want to submerge and dissolve in null void, there I find him, smiling to me from the dark horizon. He covers my watery eyes from all harsh lights and envelops me in soothing, calm, smiling light, making sure I do not dissolve in void. Showering trillions and trillions of sparkling wishes and hopes, making sure that I am relaxed and ready for the day for my journey to the another horizon. वाह, क्या बात है। अच्छा, हम जान सकते हैं आपके पार्टनर का नाम? आलोक। आलोक जी, थैंक यू सो मच। आपने देखिए इंस्पायर किया, और मेरे ख्याल से सिर्फ ये पहली ही आपने पोएट्री सुनाई है जो आपने अपने पार्टनर से इंस्पायर हुआ है। मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी आपने बना रखी होंगी। हम किसी दिन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ये टॉपिक पे, थीम पे डिस्कशन करेंगे, और फिर हम सारे सुन डालेंगे, ताकि जितने भी हमारे लोग हैं जो प्यार करते हैं और अपने पार्टनर के साथ हैं, एंड दिस लव कुड बी नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट मदर चाइल्ड, बिटवीन पेरेंट्स, और आपका अपनी धरती के लिए, एनीथिंग। जो हमारा लव इज अ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन एंड इमोशन एंड फीलिंग, इट अप्लाइज विथ एवरीवन। अच्छा आलोक जी, लाइव भी हैं, देखिए, प्राउड ऑफ माय पार्टनर, गुड सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, राइट? तभी ये पोएम भी बनती थी। तो अब नसेहा जी, हम ये जानना चाहेंगे, अब आपने सिम्टम बता दिया कि किस तरीके से हम हमारे इर्द गिर्द अगर कोई डिप्रेशन से ग्रसित है तो हम उसको पहचान सकते हैं। नाउ हम उसको ऐसे कैसे अप्रोच करें बिना उसको अलर्ट किए कि उसको ये लगे कि यार ये दया करने आ रहा है, या फिर मुझे सोच रहा है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज समटाइम्स द पर्सन इन डिप्रेशन डजंट नो कि वो खुद भी डिप्रेशन में है, राइट? तो हम कैसे अप्रोच करें उसे कि उसको ये भी नहीं लगे कि ये मुझे परेशान कर रहा है, या और हम उसकी मदद भी कर लें? हाउ टू डू इट? I wish I had a very nice answer to this, लेकिन ये मेरे साथ it's more of what I have learned through the experience and through my failures as well. When I tried to support somebody and it didn't work. There is one thing called toxic positivity. Yes. जो होता है कि आप कोई बोले यार दुखी लग रहा है, अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये पहले हम बोलते थे, पहले करते थे, हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन एट टाइम्स ये बैकफायर करता है। सो एट फर्स्ट थिंग आई थिंक इज व्हिच इज इम्पोर्टेंट इज एक्नॉलेज, हाँ प्रॉब्लम है, शायद है, यू आर फीलिंग लो, सो ठीक है, लेट इट, if you want to talk about it. If you don't want to talk about it, you're not ready, I'm nowhere gone. I'm here with you. Call me any moment you feel like. So that support कि मैं हूँ तुम्हारे बात सुनने के लिए. I promise that you will not come up with a solution, because at times a person does not need a solution. बंदे को solution पता है, लेकिन for some reason वो कर नहीं पा रहा है। बंदे को क्या चाहिए? बस मेरी बात सुन ले, बस उसको वो सपोर्ट आप एहसास दिला दो कि यार कभी भी तेरे को कुछ बात करनी हो ना, बात कर, मैं बात कर सकता हूँ। एंड अनदर थिंग इज बी एट पार ऑफ दैट पर्सन। बंदा आपकी तरफ तभी खुलेगा जब आप उसको अपने लेवल पे ही दिखोगे। अगर आप ऊपर दिखे ना, बंदा नहीं बोलेगा कुछ, नीचे दिखे तो भी नहीं दिखेगा। तो इट्स नॉट बैड इफ यू शेयर सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन, तो उसको शायद कहीं आइडेंटिफाई करे, कहीं देन ही माइट कनेक्ट विद यू एंड मे ओपन अप। बट वन stay away from toxic positivity and give that person an assurance that you are there for that person. बस उतना ही will help that person to come to you. Okay.
ठीक है। तो नसिया जी, आपने स्टोरी भी लिखी है और आपने पोएट्री भी लिखी है, राइट? दोनों कितने सिमिलर या कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से? मेरे लिए तो बहुत अलग है, बिकॉज Okay. पोइट्री मैं जब लिखती हूँ तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। जो यहाँ हाँ। पे दिल से आता है वो पेन में उतर आता है। नहीं, तो जो और लिखा जब मैं हुआ है अभी तक आपने जो बोला है, ऐसा नहीं लगता कि यू डू नॉट थिंक ऑन इट। नो वो सारे एब्सोल्युटली इन डेप्थ हैं आई सारे। जस्ट आई स्टार्ट राइटिंग राइटिंग, और वो कहाँ से कहाँ जाता है आई हैव नो आइडिया। तो ओके। इट्स एट टाइम्स इनसेन, and I हाँ। try not to even edit my poems because I try to keep it that way so that I can even हाँ, relate कि इस टाइम पे मेरा मेंटल वो स्टेट क्या माइंडसेट था। था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन when it's about prose जो stories है, it is हम्म। completely, yes, that inspiration should be there from heart, हम्म। but it's more of a हम्म। mind work. And हम्म। जैसे ये air, it took me हम्म। 1 year of research. ओके। 50th हाँ। सेंचुरी इंडिया का 50th सेंचुरी, यस। पूरा करना था, सो आई हैड टू रीड अ लॉट, इतना रिसर्च हाँ। किया। इनफैक्ट हाँ। बैकग्राउंड स्टोरीज जो बनाए हैं जिसको मैंने शायद 2% ही यूज किया है, बट इट इज अ लॉट ऑफ रिसर्च कि वहां पे खाते कैसे थे, पानी पीते, उनकी ज्वेलरी क्या होती थी, किस हम्म। डायलेक्ट में बात करते थे, और वो डायलेक्ट अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो उसका हाँ। प्रोनाउंसिएशन कैसे अलग थोड़ा सा होगा। So हम्म। that's a lot of arc and writing and research. So poem is all spontaneity, मतलब अचानक सुबह उठी लिखो शाम को, हाँ। so it's never planned. Uh, हाँ। but stories are always planned, written in हम्म। detail, lot of research. Okay. So what tip would you give to our youngsters who are into writing? अभी ये writing पिकअप ही किया है उन्होंने, कुछ ही समय हुआ है उनको भी लिखने के लिए, एंड वो भी अभी क्या है, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ बहुत यंगस्टर्स जो है शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट टिप वुड यू गिव देम कि किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाते जाओ ताकि यू विल बी अ बेटर राइटर, और अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो आप? व्हाट इज योर टिप ऑन दैट? I would lay a lot of emphasis on one thing, that is a research. आप चाहे कंटेम्परेरी भी लिख रहे हो, चाहे आपका एक कैरेक्टर आपके स्टेट से ना हो, कहीं और का हो, तो स्पेंड दैट मच ऑफ क्वालिटी टाइम। चाहे आपका वो बुक में आए ना, आपकी स्टोरी में लिखे ना, बट वो आपके दिमाग में पूरा छपना चाहिए कि वो बंदा पानी भी पीता है तो किस तरीके से पीता है। You should be able to live that character in your mind. So I know a lot of people, I mean, and don't repeat, I mean, repeat the mistake that I did when I got into corporate for 10 years. I left writing और मेरी जो हालत थी, so but then because I always thought कि अरे यार अभी टाइम कहाँ है, but important thing is that if you feel very strongly about something, you make time. So अभी भी 24 hours ही है, उस टाइम भी 24 hours थे। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा काम है, लेकिन still I'm able to get that time out because I make that time. So make that time. At least हफ्ते में 2 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। वीकेंड में एक दिन शायद पार्टी कम कर लो, लेकिन लिखो। At least what I would say, write. Constantly keep on writing. Every week at least एक कुछ तो आप लिख लो। Then only you can see the difference. Yes, yes. So हम चाहेंगे कि एक और कोई हमारे पास पोएट्री हमें सुनने को मिल जाए, एंड दिस इज, आप ये मान के चलिए हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट है तो मतलब ये हमारा लास्ट है। अगर बचेगा टाइम तो हम एक और ले सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पोएट्री, क्योंकि उसके बाद हम कुछ चीजें जो डिस्कस करेंगे तब तक हमारा टाइम हो ही जाएगा। Okay, and this is about okay, this is called Searching Peace.
a small Okay. poem. Where हाँ. will you go? The night is dark. The angels are calling. Sing no more the lark. Swampy road breathes of pungent sweat and heat. The eye searches for relief for moments within blood beat. Blood beat is heartbeat. Hold Okay. on to the ever slipping life at the moment of smile and despair. Etch on the spirit to go on the very fabric of soul bare. You wander, no but in the desert for peace. You wander, no but in the desert for peace. A head to bury in heart's deep. Warm lips to pick up the hidden tears. Lock up in your laughter's deep. I know not, fighter, the end of this war. Will you ever find peace or lose your way? Unknown tongues will sing your tales in the regime of heart till the end of days. Wow. Just Wonderful. means that I know you are going through a very bad time, but and I do not honestly know the end of this war, but people will sing about your fight with this. So don't give up. Put that hope in your soul. Yes. यस यस. तो दोस्तों जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का हमारा जो पोएट्री टॉक है नसीहा समीन जी के साथ है. शी इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं. वो कॉर्पोरेट्स को हैंडल करती हैं उस तरीके से, एंड उसके साथ साथ पोएट्री और स्टोरीज भी लिखती हैं. एंड उनकी जो पोएट्री बुक है रूबी ड्रॉप्स, राइट, वो अमेजोन बेस्ट सेलर है. और हेयर करके इनकी स्टोरी बुक है which is again won her award for best debut writer and best woman writer award. तो हम उनके उन चीजों, उनकी किताबों के बारे में, उनके लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनसे कुछ अच्छे खासे अलग अलग डीप मीनिंग वाले पॉइंट्स भी हम सुन चुके हैं. जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो सेशन होगा पोस्ट हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनकी पोएट्री भी. उसके साथ साथ नसीहा जी हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ, क्योंकि रूह मोहब्बत इज पोएट्री फॉर ए कॉज. तो सोशल और सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ इज अ बिग एस्पेक्ट. और आजकल खासकर लॉकडाउन के समय कुछ लोग जो जिन्हें डिप्रेशन या इस तरीके के सिम्टम नहीं भी थे, नाउ दे आर गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ थिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट वी हेल्प ईच अदर to become comfortable and talk about mental stress. और you never know, world is a beautiful place. और जब हम खुश रहते हैं तो हम उसके उस ब्यूटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच नसीहा जी, आप हमारे साथ ये चीज़ शेयर कर रही हैं. तो अच्छा, थोड़ा सा और इस पे आना चाहूँगा मैं कि आपका जो स्टोरी राइटिंग के ऊपर है, आपका जो रिसर्च वर्क है, आप तो बिजनेस इंटेलिजेंस साइड के हैं, एनालिटिक्स, डेटा, पूरा सारा चीज. तो वाज इट फन कि आपको अपनी बुक लिखने के लिए इतना सारा रिसर्च करना पड़ रहा है? क्या ये मजा आ रहा था आपको वो बैक एंड स्टडी करने के लिए? बिकॉज दिस वाज ऑल डेटा दैट यू आर पुटिंग इट टुगेदर. बिकॉज जो बहुत सारे और अब आ गया? I lost you in between. Am I audible? Yeah, अच्छा, now. आगे. तो हमारे कई ऐसे ये हैं राइटर जो एनालिटिक्स पार्ट से नहीं है, उनके लिए कितना आसान और मुश्किल होगा? आप पहले तो आप ये बताइए, आपका एनालिटिक्स पार्ट से होने की वजह से आपको मजा आ रहा था ये स्टडी करने में, या फिर इट वाज अगेन जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ही कि यार एक तो काम करो फिर ऊपर से इतना ये पढ़ाई भी करो क्योंकि बुक लिखनी है? एक तो मैं इंट्रोवर्ट, टू सम एक्सटेंट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन हु डजंट लाइक टू गो आउट, हु वांट्स टू bury herself on all the books. तो मजा आता है मुझे, कोई भी नई चीज पढ़ने में बहुत मजा आता है. और एनालिटिक्स से हेल्प इसलिए हो गया क्योंकि जब आर्क बिठाते हैं तो वो कैलकुलेशंस
जैसे द एयर का स्टोरी, इट ट्रेसेस बैक फ्रॉम महाभारत के एंड का टाइम टू 50th हाँ सेंचुरी। सो आपको समझ लीजिए 350 इयर्स का जर्नी यस या उससे ज्यादा हाँ का आपको डॉक्यूमेंट करना है ऑन बैकग्राउंड। हम्म। तभी उसकी बैक स्टोरीज थोड़े थोड़े जहाँ पे आप उसकी 2-3 लाइन के रेफरेंस देंगे। तो कैलकुलेशन ड्यूरिंग द एरा और एज कैलकुलेशन वो एनालिटिक्स साइड हेल्प कर देता है, अदरवाइज इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट दैट। व्हाट एनालिटिक्स रियली हेल्प मी वाज कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई वांटेड टू नो कि एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, एंड देयर इज अ very different kind of calculation that is fog gunning calculations होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी राइटिंग किस तरह से है, and that is all analytics implemented in writing. That's a complete, वो मैंने I looked at it only when I finished the book कि ओके index क्या है, but otherwise it's like anybody who likes doing projects, स्कूल के जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो हाँ writing a novel with those arcs and doing research is हाँ just like that. ओके गुड। तो हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में हम चाहेंगे कि कुछ आप हमारे ऑडियंसेस के लिए कोई संदेश आप देना चाहें, हमारे बडिंग राइटर्स के लिए एंड पीपल आउट देयर हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उनके लिए कुछ सजेशन कि खुद से कैसे बाहर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग एंड क्रिएटिविटी के थ्रू। फर्स्ट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि आपके साथ ही बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, एंड आई फील रेबल, लेकिन ऐसा ऑलमोस्ट 80% ऑफ लोगों के साथ ये होता है। आप जब जिस आई डोंट रिमेम्बर द पोएम व्हिच सेड कि मुझे लगता था कि मेरा दर्द सबसे बहुत ज्यादा है, दूसरों की हाँ सुनी तो पता चला मेरा दर्द कितना कम है। हाँ हाँ एग्जैक्ट लोगों से बात कीजिए, देखिए आसपास लोगों को आपकी जरूरत है, और इसीलिए आप हैं अभी, आपको पता नहीं है। एंड आई विल गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल। वंस आई वाज गेटिंग इन द लिफ्ट और कुछ दिन अच्छा गया, सो आई वाज स्माइलिंग, that there was an elderly gentleman who stopped and said, "Beta, did you? I mean, what happened?" I said, "Nothing. I just smiled because I felt it's a beautiful day." What he said, that today, in today's day, I seldom see a smiling person and a smiling face. I was in a very bad mood when I came out, but seeing somebody smile, I felt good. Thank you for doing it. I did nothing for that person. But so आपका भी पता नहीं आपका एक छोटा सा एक्ट कहाँ किसकी जिंदगी क्या चेंज कर दे। तो that's it. Don't just give up. You are here because there is a reason for you. You are making a difference in somebody's life. तो वो इम्पोर्टेंट है, वो प्लीज याद रखिएगा। एंड राइटिंग डेफिनेटली हेल्प्स। इसलिए लिखिए क्योंकि आपको लिखना पसंद है, आपको लिखना अच्छा लगता है जी, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। फाइंड योर इकिगाई। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई मदद नहीं कर रहा है आपको पब्लिश करने में, ये करने में, वो करने में, तो कम टू अस, हम पढ़ेंगे, हम आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे आपके राइटिंग के बारे में, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस चीज के बारे में हम बताएंगे, बिकॉज वी आर कम्युनिटी, वी सपोर्ट ईच अदर। तो नसिया, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ भी हम बात कर रहे थे, पोएट्री भी हमने बात किया, और हमारे स्टोरी राइटर्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द